चलिए ठीक है. So let me start. It's problem 8-16. I hope this problem is visible to all of you. First of all, let me read the statement of this problem और उसके बाद फिर हम बाकी solution की बात करेंगे. So you can see a boy which is standing at point D. It has a weight of 80 pounds and this boy is pulling a cord as shown to you in the figure. You need to find out कि चलें पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए. The 80 pound boy stands on the beam and pulls on the cord with a force large enough. So ये वर्ड जरा गौर से देखें. Large enough to just cause him to slip. So इससे आपको क्या मिलता है कि he is on the verge of slipping, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if the coefficient of static friction between his shoes and the beam is given to you as 0.4, we need to determine the reactions at point A and point B of the beam. At point A we have a roller support. It means कि हमारे पास क्या reaction आना चाहिए point A पे? Normal. AY आएगा. इसी तरह at point B we have a pin support. So what should be the type of reaction which we are going to get at point B? VX and BY. VX and BY. The beam is uniform and has a weight of 100 pounds. It means कि इसका weight इसके center of gravity या center of area पे act करना चाहिए. Neglect the size of the pulleys and the thickness of the beam. Okay, so first of all, let us try to model this boy. इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जो बॉय है इसके ऊपर आप केस 1, 2, 3 में से कौन सा केस लगाएंगे? He is on the verge of sliding. Case 1. Why case 1? Case number 2, sir. केस 2 आएगा ना. पेंडिंग मोशन वाला तो केस 2 और 3 है. केस 2 ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है. केस 3 जो है वो सम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है. इसमें तो कांटेक्ट पॉइंट ही एक है. सो we are going to apply case number 2 in which this boy is on the verge of sliding. So आपके पास इस boy का जो weight है it is going to act downward. So let me write it as WA. और क्या फोर्स इसके ऊपर एक्ट करनी चाहिए? बीम को आप रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? Sir, normal force. तो बीम की फोर्स मिलेगी जिसको चले मैं यहाँ ND से रिप्रेजेंट करता हूँ. इसके अलावा ये एक अदद रोप को खींच रहा है. So once you remove that rope, what you are going to get? Tension in that rope. और वो टेंशन जितने एंगल पे एक्ट करेगी वो आपको गिवन है इस स्मॉलर ट्राइंगल से कि ये आपके पास 5 है, then this distance is 12 and this distance is 13. So 5, 12, 13 आपको ये एंगल गिवन है. Any other thing जो कि आनी चाहिए यहाँ? What about friction? He is on the verge of slipping. So किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा रोप को खींचते हुए? सर फ्रिक्शन राइट साइड पे. So he is pulling this rope. He is on the verge of slipping towards the left. So accordingly आपके पास friction जो है वो towards the right आनी चाहिए. So let me call it as FD. ये आपके पास right की तरफ आनी चाहिए. I hope that this free body diagram of the boy is clear to all of you. कोई डाउट तो नहीं है किसी का इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से? नो सर. सर सॉरी आपको सर इंटरप्ट करने के लिए. सर वो मोहम्मद अहमद कह रहा है कि मेरा लैपटॉप डेड हो गया है, कोई लाइट नहीं है उसके पास, तो इस वजह से सर वो डिस्कनेक्ट हो गया क्लास. कोई इशू नहीं है. अटेंडेंस वो कनेक्ट हो जाएगा बाद में, तो कोई इशू नहीं है. चलें ये बताएं कोई और चीज़ जो आपके ख्याल में इस फ्री बॉडी डायग्राम पे आनी चाहिए? तो द डायग्राम इज कंप्लीट. सर डी पॉइंट पे तो यही आएगा. यस सर. तो आपके पास since this boy is on the verge of sliding, so when he is on the verge of sliding, what should be the value of friction FD? It should be equal to mu n. So mu आपको given है 0.4, ND आपने लिख लिया ये. So आपके पास अब अप्लाई करेंगे equation of motion on this boy. So summation Fx equal to 0. What are the forces which are acting along the x-axis on this boy? FD. One is friction 0.4 ND. The other one is a component of this tension force. So वो कौन सा component है?
12/13. 12/13 और चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है तो आपने उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लिया. So this should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Similarly, you are applying summation Fy equal to 0. The forces which are acting along y-axis are the weight which is acting downwards. So आपने negative sign डाल दिया. ND आपके पास upward act करेगा और tension का component होगा 5/13 वाला जो कि आपके पास negative act करेगा. So ये आपके पास दो equations हैं. इन दो equations में unknown क्या क्या हैं? ND or tension. Tension or normal ND or force. tension. So once you solve it, you are going to get the values of those unknowns. So once you solve it, tension comes out to be 41.6 pound and ND comes out to be 96 pound. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई. यहाँ तक क्लियर है? देखो कोई डाउट, कोई क्यूरी आपकी? चलें. So आपने टेंशन और एनडी की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली. सो लेट मी रब द सोल्यूशन टिल नाउ ताकि आप जो हैं वो हम बीम के रिएक्शंस की तरफ जाएं और बीम की फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ जाएं. वो दो वैल्यूज टेंशन और एनडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने वहाँ साइड पे लिख दी हैं. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इरेज्ड फ्रॉम द वाइट बोर्ड. जी, नाउ व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए हमें आपके ख्याल में? बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी चाहिए, isn't it? Yes sir. चलें, बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम इसको वहाँ सपोर्ट रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं. जिस तरह अभी शुरू में आपसे जिक्र हुआ था, पॉइंट ए के ऊपर रोलर लगा हुआ है. सो वंस वी रिमूव दैट रोलर वी आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ AY. सिमिलरली एट पॉइंट बी वी हैव अ पिन सपोर्ट. सो वंस वी रिमूव दैट पिन सपोर्ट वी आर गोइंग टू गेट टू सपोर्ट रिएक्शंस. वन इज BY, द अदर वन इज BX. ये आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस BX और BY आ गए. चलिए, और आपके ख्याल में एक एक पॉइंट से आगे मूव करते जाएं. B और A. इसके बाद आपके पास बीम का अपना वेट है जो कि 100 पाउंड्स है. ये किस पॉइंट पे एक्ट करना चाहिए? CG पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम इफ इट हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 13 फीट? 7.5. सर 6.5. 6.5 कि 7.5? Sorry, 6.5. 6.5. So let me call this point as that 6.5 point. So यहाँ मेरे पास W जो है वो एक्ट करना चाहिए डाउनवर्ड, isn't it? मैं इसको कह देता हूँ पॉइंट G है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम है. ठीक है, यहाँ तक ओके. पॉइंट C जो है वो एक रोप के साथ कनेक्टेड है. सो वंस यू रिमूव दैट रोप फ्रॉम पॉइंट C, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? टेंशन. इट मींस के पॉइंट C के ऊपर यहाँ मैं एक अदद टेंशन बना दूंगा और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वो एंगल 60 गिवन है, दूसरा 90 है, तो ये एंगल आपके पास 30 आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ओके, अब पॉइंट E की अगर मैं बात करूं जो कि दूसरा एंड है बीम का, इसके ऊपर आपके पास दो अदद अगेन रोप्स आ रही हैं. सो वंस यू आर रिमूविंग दैट रोप यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ T एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ T, isn't it? यस सर. ठीक है. सो आपके पास हम पॉइंट B से स्टार्ट हुए. B पे चूंकि पिन जॉइंट लगा था, दो सपोर्ट रिएक्शंस आ गए. फिर पॉइंट A के ऊपर आए, A पे रोलर लगा हुआ था, आपके पास एक अदद और सपोर्ट रिएक्शन आ गया. देन वी मूव ऑन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वेट एक्ट करेगा 100 पाउंड्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. उसके बाद पॉइंट C के ऊपर चूंकि रोप लगी हुई थी, आपने रोप रिमूव की, टेंशन आ गई. उसके बाद पॉइंट E के ऊपर दो तरह रोप लगी हुई थी, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक ऊपर की तरफ. तो दोनों की रोप्स के अगेंस्ट आपने टेंशन लिख ली. चूंकि ये एक सिंगल रोप है तो द वैल्यू ऑफ टेंशन इन ईच ऑफ दिस पॉइंट्स इज गोइंग टू बी सेम. सो हमने T से उसको रिप्रेजेंट किया है, T1, T2 या T3 से रिप्रेजेंट नहीं किया है. यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई पॉइंट जो अभी तक आपको ना समझ आया हो इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से? ओके, नाउ मूविंग टू पॉइंट D विच इज अ क्रिटिकल पॉइंट. आप अगर आपको ये याद हो, वंस वी वर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन, हमने कहा था कि इस बंदे का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करना चाहिए. चलें उसको मैं उस W से डिफ्रेंशिएट करने के लिए WD कह देता हूँ. तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था. नॉर्मल रिएक्शन आपके पास
अपवर्ड एक्ट कर रहा था जिसको मैंने एन डी कहा था, और टेंशन इन द रोप इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। फ्रिक्शन आपने किस डायरेक्शन में कहा था? राइट राइट, इसको मैंने एफ डी कहा था। चलें, अब आप इस बंदे का इफेक्ट पॉइंट डी पे कैसे लेकर आएंगे? आप इस बंदे को रिमूव करेंगे, इजंट इट? बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना, तो आपने जिस तरह बाकी पॉइंट्स को आइसोलेट किया, इस बंदे को भी हटा देंगे, ऐसे ही है। सो इस बंदे को हटा के आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल। So what should be the value of that normal? It is going to be ND, isn't it? ऐसे ही है। So आपने वो ND ड्रॉ कर लिया एट पॉइंट D। क्या आप दोबारा वेट भी शो करेंगे WD? नो सर। वजह क्या है? ऑलरेडी ND को अगर आप देखें उसमें वेट का इफेक्ट आ चुका है। अगर आप ND की कैलकुलेशन देखें, ND जब आप कैलकुलेट करे थे तो उसमें ऑलरेडी आपने वेट और जो टेंशन इस डायरेक्शन में आ रही थी उसको शामिल किया हुआ है। तो ये ना हो कि आप गलती से ND के साथ साथ WD भी शो कर दें। यहाँ नहीं, WD की वजह से ही तो ये ND मिल रहा है इसको यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया हर एक को? यस सर। चलें, और कुछ आपके ख्याल में हम मिस कर गए हैं यहाँ? फ्रिक्शन पॉइंट डी पे आनी चाहिए। उसका डायरेक्शन क्या होगा? थोड़ा सा और से सोचिए, बताएं। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। चले, मैं आपके ख्याल से लेफ्ट पे बना लेता हूँ इसको, पर रीजन तो नहीं, लेफ्ट की तरफ आपने क्यों बनवाए है? एनी स्पेसिफिक रीजन? सर राइट पे नहीं आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड तो उधर वो लेफ्ट पे करेगा। नहीं, मैं इसीलिए जिसने लेफ्ट बताया है उससे रीजन भी मांग रहा हूँ ना। तुक्का छोड़ा है तो और बात है, अदरवाइज कोई लॉजिक आप बताएं इस लेफ्ट की। जी, एनी रीजन विच यू थिंक कि ये लेफ्ट की तरफ आपने बनवाए? ऑल्दो करेक्ट है, वो आएगा लेफ्ट की तरफ ही। कन्वेंशन ये है कि जिस तरह सर हम अवे फ्रॉम द पॉइंट ड्रॉ करते हैं हर चीज, जिस तरह हम आइसोलेट करते हैं किसी चीज को। ये तो गलत कन्वेंशन है। आपने जवाब सही दिया, लॉजिक गलत बता रहे हैं। एनी अदर लॉजिक कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? चलें, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। बंदा जब मौजूद था तो उस वक्त सर हमारे पास फ्रिक्शन राइट साइड पे थी, उसको रिमूव किया तो यानी कि उसकी रिएक्शन में इसलिए आई। नहीं, देखिए, आप फ्रिक्शन कैसे जज करते हैं? किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करती है? अगर आप थोड़ा सा सोचें, जो हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट में की थी, इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स? सर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन को देखें। अब थोड़ा सा गौर करें, जब आप बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे तो आपके पास बीम को अगर मैं स्टेशनरी तस्वुर करता तो बंदा जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा था, ऐसे ही है। यस सर। तो उस सूरत में आपने बंदे के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये बता दी थी। यहां तक की लॉजिक सही है आपकी? क्योंकि बीम स्टेशनरी आपने तस्वुर किया था, बंदा स्लाइड कर रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो आपने कहा फ्रिक्शन टुवर्ड्स द राइट होगी व्हेन यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन। यही लॉजिक थी ना? काइंडली जवाब दे दे कोई स्टूडेंट। चलें, अब आप जरा बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सो बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप बंदे और बीम का जो रिलेटिव मोशन है वो देखें। उस रिलेटिव मोशन को देखने के लिए अगर मैं बंदे को स्टेशनरी कर दूं तो बीम किस डायरेक्शन में बंदे के हवाले से मूव करती हुई आपको महसूस होगी? सर बीम फिर लेफ्ट साइड। यार देखो, अगर तो बंदा बीम में स्टेशनरी करूं, बंदा राइट साइड पे मूव कर रहा है, बंदा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ही है। अगर मैं बंदा स्टेशनरी कर दूं तो रिलेटिव मोशन बनाने के लिए बीम किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? टुवर्ड्स द राइट नहीं जानी चाहिए? रिलेटिव मोशन देख रहा हूं ना मैं।
सो बीम स्टेशनरी है, बंदा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बंदे को स्टेशनरी करूं तो बीम को राइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन अगर मैं देखूं तो उस हवाले से मेरी ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट आना चाहिए, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट आना चाहिए। वैसे भी अगर मैं सिस्टम को देखूं जो कि बंदे और बीम वाला सिस्टम है, फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली इंटरनल टू द सिस्टम, ऐसे ही है, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूं बंदे और बीम का एक कंबाइंड सिस्टम, तो फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली इंटरनल टू द सिस्टम। और हमने इंटरनल फोर्सेस के हवाले से क्या पढ़ा था, किस तरह ये अकर करती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट कोलिनियर पेयर्स के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती इंटरनल फोर्सेस। यस सर। लिहाजा मेरे पास जब मैं बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मेरे पास लेफ्ट की तरफ आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, अब जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लिए, अब मुझे बताएं कि आपके पास ये जो बीम है जो कि रिजिड बॉडी है, कितनी इक्वेशन होती हैं रिजिड बॉडी की, इक्विलिब्रियम की? सर 3 इक्वेशन, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड मोमेंट। तो कहाँ से आपको ये शुरू करना चाहिए, अपनी इक्वेशन कौन सी पहले लगानी चाहिए कि आपको रिएक्शन ए एक्स, ए वाई और बी एक्स में से कोई एक मिल जाए? सर मोमेंट सर अबाउट एक्स पहले लेना है। अगर मैं मोमेंट अबाउट बी लगा लें, अगर मैं पहले मोमेंट अबाउट बी लगा लूं तो कोई नुकसान तो नहीं है? नो सर। बी एक्स बी वाई दोनों 0 हो जाएंगे। ए वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट बी? 4। क्लॉकवाइज मोमेंट है, काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। नेगेटिव साइन आ गया। डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट बी से? 6.5। 6.5। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। पॉजिटिव आ गया। जो पहला पॉइंट सी पे टी है, इसका कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा, कॉस के साइन? सर ये काइंडली बता दें 6.5 किस तरह है? यार यस सर, सेम क्वेश्चन। बीम की लेंथ कितनी है? यस सर। ओके सर, ठीक। 13 फुट लेंथ है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका 6.5 पे एक्ट करेगा ना। ओके सर। ओके सर। चलिए, टी का कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा पॉइंट सी पे, कॉस वाला या साइन वाला? सर साइन वाला, कॉस वाला उसे पास कर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 7। और क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज सर। काउंटर क्लॉकवाइज है। पॉइंट ई पे जो टी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर उसका 13। 13। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, ये जो पॉइंट ई के ऊपर की तरफ टी है, इसका एक्स कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा या वाई कंपोनेंट? सर वाई कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट 5/13 होगा। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका फ्रॉम पॉइंट बी? सर 13। क्लॉकवाइज 13। काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। सो ये आपके पास मोमेंट वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें अननोन क्या है, टी की वैल्यू तो आपको मिली भी थी जब आपने बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी। तो अननोन हियर इज ए वाई। वंस यू सॉल्व इट, you are going to get the value of AY to be equal to 474.1 pounds. Is it clear? यस सर। Okay, next step में आपको क्या करना चाहिए? Summation fx, summation fy. So once you apply summation fx, you are going to get the value of bx. Once you apply summation fy, you are going to get the value of by. Is it clear? यस सर। यस सर। कोई डाउट जो आप पूछना चाहें इस पूरे प्रॉब्लम से? नो क्वेरी? Okay, so moving to the final problem of today's lecture. It is problem 8-19. You have 2 blocks A and B. Weight of these blocks is given to you as 10 pounds and 6 pounds respectively. They are resting on the incline for which the coefficient of static friction is 0.15 for block A and 0.25 for block B. You need to determine the angle theta for which both blocks are on the verge of sliding. So when both blocks are on the verge of sliding, is it case 1, 2 or 3? सर केस 2 इंपेंडिंग मोशन बता रहे हैं। Impending motion तो है, पर all points of contact है या some points of contact है?
हम फाइन। सर बोथ ब्लॉक्स है तो फिर ऑल नहीं होगा सर? जी बोथ ब्लॉक्स है तो वो ऑल होगा, विच इज केस नंबर 2। इट मींस कि आप फ्रिक्शन की वैल्यू ए पे भी एफ इक्वल टू म्यू एन लगाएंगे और बी पे भी एफ इक्वल टू म्यू एन लगाएंगे, बिकॉज इट इज गिवन टू यू। इसमें ये नहीं कहा कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सिस्टम में मोशन शुरू हो जाए। सिस्टम में मोशन का अगर कहता तो फिर आइदर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी और साइमल्टेनियस, फिर वो केस 3 बन जाता। आपसे ये कहा गया कि थीटा की वो वैल्यू जिसपे दोनों ब्लॉक्स मोशन शुरू करते हैं, तो दोनों ब्लॉक्स, इट मींस कि आपके पास केस 2 आएगा। आई होप कि ये वर्डिंग से हर एक को क्लियर है कि हाउ इज इट केस 2। यस सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो तो फ्रिक्शनल इक्वेशंस हो गई हैं, एफ ए इक्वल टू म्यू एस या म्यू एन ए एफ बी इक्वल टू म्यू बी एन बी। और चलें इक्वेशंस की बात बाद में करते हैं, पहले जरा फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाएं। आप दोनों पार्टिकल्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो दिस शुड बी द वैल्यू डब्ल्यू ए एन ए थीटा एफ स्प्रिंग, और ए के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? सर अपवर्ड। अपवर्ड आनी चाहिए, क्योंकि दिस ब्लॉक हैज द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो आपके पास फ्रिक्शन अपवर्ड आ गई। आई होप कि दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस आपके पास आ गया, एन बी आपके पास आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, ये स्प्रिंग फोर्स आ गई, और बी के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर वो भी अपवर्ड। वो भी अपवर्ड, तो वो हमने ड्रॉ कर ली। सो ओवरऑल जब आप दोनों पार्टिकल्स के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो पार्टिकल ए के लिए आपको दो इक्वेशन, पार्टिकल बी के लिए आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। So when we draw the free body diagram of A, we are going to get these two equations for particle A. Similarly, once we draw the free body diagram of B, we are going to get these two equations for particle B. So overall हमारे पास ये 4 equations हो गई हैं। Unknowns कितने हैं इन equations में, जरा गौर से देखेंगे। One unknown is FA, second one is NA, third one is theta, FB, NB। तो ये 5 अननोन्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसके अलावा छठा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी, isn't it? यस सर। यस सर। और कोई चीज जो आपके ख्याल में अननोन है? सो 6 अननोन। इक्वेशन कितनी है आपके पास? सर 4 ये हैं और 2 मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, so once you solve these equations you are going to get, अब वो सोल्यूशन ही यहाँ हुआ हुआ है, मैथमेटिक्स यहाँ हुई भी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप मैनुअली करें, आप किसी तरह कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। बहरहाल द वैल्यू ऑफ थीटा वुड कम्स आउट टू बी 10.62 डिग्रीज। आपके पास थीटा की वैल्यू 10.62 डिग्रीज आ जाएगी। इस एंगल पे ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इससे थोड़ा सा भी एंगल आप बढ़ाएंगे तो ये दोनों में मोशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, क्या फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स का? F equal to kx। F इक्वल टू के की वैल्यू आपको गिवन है। अगर आप चाहें थीटा एन ए एन बी फाइंड करने के बाद इनमें से किसी इक्वेशन के साथ अगर एक्स फाइंड करना चाहें तो एक्स भी आपको मिल जाएगा, लेकिन चूंकि कहा नहीं गया तो जरूरत नहीं है इसको डिटरमिन करने की।